Yes. Yesterday we have seen the salaries and some exemptions regarding gratuity, retrenchment, HRA and all. Okay. And also we have seen some sections also, which the salary and the other heads comes on which sections. Okay. So, and also we have seen how to calculate the format, how to calculate income from salary. First, you have take some basic salary, add bonus, commissions, whatever. Then you added some allowances, perquisites, then profit in lieu of salary like arrears and advance salary. Then the retirement benefit, you have to add it like gratuity, pension, and leave encashment. Okay. And you get gross salary. Means if you need gross salary, that means you have to require basic salary, bonus, commission, then allowance perquisites, profit in lieu of salary like arrears and advance salary, retirement benefit like gratuity, pension, leave, encashment. Okay. So whole are together, that is called gross salary. And last, if you need chargeable gain of our business or in net salary, so you require some deductions, and these deductions comes under section 16, standard deductions, whatever the allowances, professional tax. Okay. And you get chargeable gain from business or net salary. Now, yes, some implications of provident fund. Provident fund is important, and which under it's come, we'll see. Employer contribution. Okay. Employers contribution comes is employee contribution. Okay. And interest on PF, whatever the provident fund you get every year, you'll get interest on that payment. And lastly, the payment of lump sum amount on the retirement. It's your billing, means you need a lump sum amount or pension basis. Then SPF. Okay. So that is a fully exempt from tax. Okay. So fully qualifies for deductions under sections 80C. You don't pay tax. Okay. So fully exempt from tax. Now, RPF, Reserve Provident Fund. Okay. Reserve Provident exempted up to the 12% of salary, fully qualifies for up to 9%. Okay. Exempt subject to then okay, Reserve Provident Fund and Reserve Provident Fund. So deduction under section 80C, all PF comes in 80C. Accumulated amount exempt tax, but interest is taxable. Whatever the amount we will get, it's exempt, but interest, whatever the interest get you on the basis of yearly basis, half yearly basis, so it will be chargeable. And public provident fund not applicable as assessee own contribution. Okay, only single contribution you get in provident fund, but rate of interest is getting good. Rate of interest getting good. So fully qualifies for deductions under section 80C and fully exempt from tax if you have a PPF account. So you get benefits of that in tax. Okay, it will be fully exempted. Next. Some allowances also fully exempted. Okay, government employee rendering service outside in India. Then house rent allowance granted to judge on High Court and Supreme Court. Allowance given to High Court and Supreme Court judges, allowance received by an employee of UNO from his employer. Depend. The cities, every state have different policy. Okay, so as per their
rules, we need to follow it. And the allowance fully taxable is DA is taxable, CCA means conveyance allowance, medical allowance, then lunch, overtime, servant, family, tiffin allowance is fully taxable. Even warden, deputation, non-practicing, dog allowance, marriage, project allowance, capital compensatory, water and electricity allowance, entertainment allowance for non-government employees. Means if you are government employee, it's okay, you're getting exemption. But if you are a private employee, you don't get any kind of exemptions. It is fully taxable. Now, partially taxable HRA is partially means 50% paid owner, employer, and 50% paid by you. Entertainment allowance for government employee, helper, uniform allowance, it's a partially means 50%, 50% paid by employer, 50% paid by you. And education allowance, conveyance, traveling and transport allowance also partially taxable. Academic research allowance, special allowance, allowance for transport, employee daily allowance, it's also fully taxable. Sorry, partially taxable. So that is the exemptions of HRA. Now you have to must understood what is actual and how to calculate HRA. See, first, whichever is list of the below is exempted of HRA. Like actual HRA received. Okay, actual HRA means if you are employee of a good company or bank, okay, Bank of India, State Bank of India, and you get HRA monthly 7,000 rupees. Okay, but it's your actual HRA. But wherever you stay, so you paid 15,000 rupees per month rent. Okay, so 7,000 fully exempted and another 7,000 is paid by you. But second option, what he said, he rent paid minus 10% of salary. Okay, so your basic salary, actual HRA received is 7,000. But when we calculate, because your basic is increased na every year and whatever, if you have a getting basic salary 20,000, okay, and 20,000 के अगर मैं 10,000 करती हूँ या 25,000 के तो जो भी आता है 2,000 वगैरह, so you have to minus this, rent paid this, and 50% of salary in metro city. If you are staying in metro city, so you will get benefit of 50% and in other cities. Okay, so that is the benefit you will get in HRA. And salary, what we take, basic, DA, and commission, fixed, whatever. What is the chart? This is basic salary, na? So basic salary we need to calculate. Means gross salary पे हमें calculate करना होगा. And whatever the amount comes, we'll get benefit. So amount of exemption on entertainment allowance only for government employee. Whichever is list of the below is exempted. मतलब इसमें से जो भी कम होगा उसमें आपको exemption मिलेगा. Actual entertainment allowance received and notified limit to rupees 5,000. 5,000 तक आपको exemption मिलेगा. Basic salary अगर आपको calculate करना है तो 20% of basic salary. Whichever is less. Perquisite rent-free accommodations. So valuation of unfurnished accommodation, central government, license free fixed by government, other employee. Okay, so this is the structure and this is the limitations. Okay, so rent-free accommodation means if you are staying the employer's property, okay, employers provide you the accommodation facility. So what kind of benefit you get? So valuation of unfurnished depends. Both you get some furnished house or unfurnished house. So different valuation comes in. So valuation of unfurnished accommodation, central government, license fee fixed by government and other employee. So depend on the population of city. First, population is below 10 lakhs. Population is exceed 10 lakhs but less than 25 lakhs, and population is exceed 25 lakhs. Okay, so where the accommodation is owned by employer, 7% of salary
10% of salary and 15% of salary. And where the accommodation is not owned by employer, अगर employer का नहीं है, आपको करना है, तो अभी जो HRA का रूल हमने देखा वही actual rent paid by employer और 15% of salary, actual rent paid by employer or 15% of salary, or actual rent paid by employer or 15% of salary, whatever, whichever is less. So valuation of furnished accommodation is you have to add 10% of cost of furnishing if it is furnished. Okay, so yesterday we have seen the retirement benefit of gratuity and all and all. So government employee is fully exempted. Employee covered under the payment of gratuity Act 1972. So actual amount of gratuity received rupees 20 lakhs. Okay, and 15 days of salary last drawn for every completed year of service or part there is in excess of 6 months. So yesterday we have seen this. And actual amount of gratuity other employees जो मतलब गवर्नमेंट में नहीं है, so उनका कैसे कैलकुलेशन होता है? अमाउंट 20 lakh is limit is there and half month of average salary last drawn for which completed year of services depends. Retirement benefit pension, ये भी हमने देखा था कि पेंशन भी हमें किस तरह से कैलकुलेट करने, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम करेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे. चलिए हम लोग जैसे ये अनकम्प्यूटेड मंथली पेंशन, अनकम्प्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल एज सैलरी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट, fully taxable. Computed in lump sum pension is fully exempted and for government employee के लिए fully exempted है. Non government employee 1/3 of pension is exempted if the employee receives gratuity. 1/3 pension is exempted and 1/2 of pension is exempted if the employee does not receive gratuity. So let's see one problems. Okay, computation of basic salary. First we calculate basic salary. So here the problem is like that. Dr. Manikandan was appointed as a manager of a private limited company. Okay, you must read carefully any kind of problem. Okay, so Dr. Manikandan was appointed as a manager of a private limited company on 1st January 2017. Have you seen all the PPT now? Yes, Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in the grade of rupees 7,400, his basic, his salary is 7,1400 and 300 CA वगैरह जो भी होगा and 25,000 at a basic pay of rupees 70,400 per month. Okay, he gets salary 7,400 per month. So compute his salary income for the previous year, okay, 1920. And salary is due on 1st of every month, okay, and salary is due on last date of every month. So 1st of every month, either last day of means 30th June को होता होगा या फिर 1st जून या जुलाई को होता होगा, whatever. ठीक है, let's see. For working notes, we have to prepare here salary fixation in the scale of 17,400, 300 plus 25,000. Okay. Now, मतलब उसका जो स्केल है 17,400 से कितना हुआ है 25,000 तक उसको सैलरी मिलती है, तो हमें लास्ट ईयर की कैलकुलेट करनी है. अभी हमको 17 का देखना है सबसे पहले, बिकॉज उसने लिया है यहाँ पे कि ही अपॉइंटेड, कब से जो अपॉइंट हुआ है वो 1/1/2017 से, मतलब 1 जनवरी 2017 से. तो अभी हमको 1920 का कैलकुलेट करने के लिए बोला है 1920 तक. तो देखते हैं 1/17 से उसका 1920 तक 25,000 गया है या नहीं. चलिए कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने डेट को ले लिया है, मतलब एक फर्स्ट ईयर है ना 17 का फर्स्ट ईयर हमने कैलकुलेट किया. उसने 1/1/17 को ज्वाइन किया, तो उसका जो
साल है वो कब कंप्लीट हुआ, 31/12/2017 को। 12 मंथ्स हो गए, तो 12 मंथ के हिसाब से उसको पर मंथ कितनी सैलरी मिल रही है, 17,400 पर मंथ। ओके, तो ये एक साल की 17,400 पर मंथ, ये एक साल की हो गई। नेक्स्ट ईयर उसको 300 का एक्सटेंशन मिला, बढ़ गई मान लो, तो 1/1/18 से 31/12/18 तक उसका जो 1/1/18 से उसका सैलरी बढ़ गया, मान लीजिए, है ना, 31/12 तक 17,400 मिल रहे थे, उसमें हमने 300 ऐड कर दिए, तो उसका सैलरी हो गया 17,700 रुपए, 17,700 रुपए, राइट। तो ये हो गया 18 का कैलकुलेशन। 19 में उसका सैलरी क्या था, उसमें फिर से 300 हमने इंक्रीज किए, ठीक है, तो वो हो गया 18,000 पर मंथ। उसके बाद 20 में, है ना, 19-20 का कैलकुलेट मीन्स 31 दिन तक, क्योंकि एज पर फाइनेंशियल ईयर हम टैक्स में जो भी कैलकुलेशन है फाइनेंशियल ईयर में हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल टू मार्च का ही काउंट करते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, 20 तक बोला उन्होंने, 19-20 का, तो हमने क्या किया, 1 जनवरी से लेके 31 दिन 20 तक हमने उसका 300 ऐड किया और उसमें 18,000 पर मंथ कैलकुलेशन किया। गॉट इट? यहाँ तक समझा? किसी को कोई तकलीफ है? एनीवन हैव डाउट? नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट, अभी हमको निकालना है सैलरी ड्यू ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो 1st ऑफ एवरी का सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है, तो पहले तो हमने क्या किया, सैलरी फॉर 10 मंथ्स रुपीज 18,000 पर मंथ। ओके, 19-20 का हमको कैलकुलेट करना है ना, तो 19-20 के हिसाब से हमने क्या किया, 10 मंथ का 18,000 अब, ठीक है। मार्च सैलरी रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 टू दिसंबर तक, है ना, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। सो फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेट किया, तो मार्च से हमने दिसंबर काउंट किया, जनवरी फरवरी छोड़ दिया 19 में, तो 18,000 के हिसाब से, मतलब सैलरी रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2020, तो कितना हो गया, 10 इंटू 18,000, 1,18,000 10 मंथ का, ठीक है। सैलरी फॉर 2 मंथ्स, और अगर हमको फरवरी और मार्च का सैलरी पकड़ना है, क्योंकि 20 का ही कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू 18,300, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 महीने का 36,600, ठीक है। अभी आपका टोटल सैलरी कितना हुआ है, सो सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे हमने लास्ट डेट पकड़ा, वहां पे हमें प्रॉब्लम में बोला था या तो फर्स्ट में होती है तो लास्ट में, चल हम लास्ट लेते हैं। सो सैलरी फॉर 9 मंथ रुपीज 18,000 फ्रॉम अप्रैल सैलरी रिसीव्ड इन 30th, अगर हमने काउंट किया 30th को मिलती है, दिस मंथ की सैलरी दिस मंथ मिलती है, तो इट्स इजी फॉर कैलकुलेटिंग। तो हमने इसका ऐसा कैलकुलेशन किया है यहाँ पे कि 9 मंथ की 18,000 के हिसाब से वो होती है 1,62,000, एंड 3 मंथ्स की जो जनवरी और मार्च की हमने कैलकुलेट की है, तो वो होती है 54,900। 12 मंथ की हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा जो इंक्रीमेंट है वो कब हो रहा है, जनवरी में हो रहा है ना, मार्च के बाद अप्रैल में नहीं हो रहा है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो है अप्रैल टू मार्च, तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा होल कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से आता है, ठीक है। यहाँ तक समझा? किसी को कोई डाउट है? उसको पूछना है ये कैसे आया वो कैसे आया, एनीवन? नो मैम, नो डाउट। नाउ अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 1920, जो हमने ऑलरेडी निकाला, तो जो हमने 10 मंथ का निकाला है ना, अप्रैल से लेके मार्च तक का, तो वो कितना था, अप्रैल
2019 टू मार्च 2020 वो आया 1,80,000 टू 3,600 फर्स्ट वाला जो कैलकुलेट किया है ना हमने यहाँ पे ये, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ एंड लास्ट ऑफ एवरी मंथ हमने दोनों का कैलकुलेट, सैलरी ड्यू और अगर हमें 1 तारीख को सैलरी मिलती है तो उसका बेसिक सैलरी कितना आएगा, और अगर हमें सैलरी लास्ट डेट में मिलती है मंथ की तो उसका कैलकुलेशन क्या है। तो हमने जो पहला है ए, उसमें हमने फर्स्ट डे को जो कैलकुलेशन जो सैलरी मिलता है उसका कैलकुलेशन किया है, तो वो कितना आया है 1,80,000 10 मंथ का एंड 2 मंथ का 36,000। तो आपका टोटल बेसिक सैलरी कितना हो गया 2,16,600। और लास्ट मंथ में जो सैलरी मिलता है लास्ट डेट में, तो उसका जो कैलकुलेशन हमने किया उसका कितना आता है 18,000, 1,62,000 और 3 मंथ्स का 54,000, 12 मंथ का ही आया है। तो ये कितना आया आपका 2,16,900। तो कितना डिफरेंस है 300 का डिफरेंस है इसमें भी है ना, इंक्रीमेंट 300 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से आपको सैलरी का ये बेसिक था शॉर्ट हाउ वी कैलकुलेट। अगर आपको सैलरी फर्स्ट मंथ में मिलती है तो कितना होगा, लेकिन आपको सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, मतलब जो भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, जो भी आपको इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं वो आपको हर ईयर में ऐड करना है। आपको सैलरी स्लिप होती होगी तो उसमें आपको सब मिलेगा। इवन आपको अगर आप सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो लोग भी आपको सैलरी स्लिप देते हैं, तो वहां पे भी आपने देखा होगा उसमें भी ये सारे नॉर्म्स होते हैं और इसी प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं एवरी, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिक सैलरी कैलकुलेशन। ये सिर्फ हमने बेसिक कैलकुलेट किया है, ओके। इसमें अभी हमने मतलब सिर्फ सैलरी ही लिया है, इसमें हमने टीए डीए कुछ भी नहीं लिया है, ओके। सो ओनली मीन्स सैलरी का अमाउंट और वो कैसे फाइनेंशियल ईयर में और प्रीवियस ईयर का कैसा कैलकुलेशन हमने किया है, तो इसी प्रकार से हमने कैलकुलेशन करना है। आपको कोई भी पीरियड दिया हो है ना, आपको जुलाई से भी पीरियड दिए जा सकते हैं, बिकॉज डिपेंड ऑन एम्प्लॉय, डजंट मैटर कि एम्प्लॉय कब ज्वाइन कर रहा है, जब से वो ज्वाइन करेगा तब से उसी सैलरी मिलेगी और आपको तभी से उसका कैलकुलेशन करना है, ओके। अगर वो डेज में छोड़ के जाता है 15 डेज 14 डेज 10 डेज 9 डेज तो वो भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया है कंप्यूट द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस फॉर द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मिस्टर हरिहरन फॉर द ईयर assessment year 2020-2021. Okay, compute the taxable portion of allowances from the information furnished by Mr. Hariharan for the assessment year 2020-2021. First, traveling allowances. Okay, कितना exemptions है आपको ट्रैवलिंग में, कितना अलाउंस मिलता है, कितना टैक्सेबल है, तो 750 पर मंथ मिलता है आपको, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको 750 पर मंथ मिलता है और आपका कितना है मतलब 1,500 पर मंथ हो जाता है वो, ठीक है। देन हेल्पर अलाउंस ऑल्सो आपको 1,200 तक एग्जेम्प्ट है, देखा जाए तो वो कितना है 1,350 पर मंथ है ना। ये मतलब हरिहरन का ये है क्या है अलाउंसेस है जो उसे मिलता है ना। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस उसको मिलता है, अगर वो ट्राइबल एरिया में जाता है तो उसको 2,400 पर मंथ मिलता है। एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड ₹300, तो उसको कितने चाइल्ड है 3 चाइल्ड है तो उसको 2 चाइल्ड का ही एग्जेम्पशंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन हॉस्टल एक्सपेंसेस, अगर वो हॉस्टल में रहता है अलाउंसेस पर चाइल्ड या उसके बच्चे पढ़ रहे होंगे तो पर चाइल्ड के हिसाब से 2,500 उसको मिलेगा, और उसको कितने बच्चे हैं 3 बच्चे, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ₹2,500 पर मंथ पर चाइल्ड, ओके। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है उसको एक्सपेंडिचर ₹15,000 पर मंथ। हाउ मच इट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 15,000 पर मंथ, आणि एक्चुअल कितना है उसका 19,000 पर मंथ। कन्वेयंस अलाउंस कितना है 50% पर्सनल एंड 1,500 पर मंथ उसे मिलता है। डॉग अलाउंस उसके पास जो भी है डॉग है पेट्स है तो उसका 1,000 रुपीज पर मंथ मिलता है।
सो अभी हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसका ये निकालेंगे, हमें कंप्यूट करना है उसका सारे अलाउंसेस कितना है उसका। चलिए कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटेशन टैक्सेबल अलाउंस ऑफ मिस्टर हरिहरन, कितना टैक्सेबल है, उसको कितना पे करना है वो देखते हैं, और कितना उसे एग्जेम्पशन है। तो कंप्यूटेशन टैक्सेबल अलाउंस ऑफ मिस्टर हरिहरन फॉर द ईयर असेसमेंट ईयर 2021, ओके, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस पर्टिकुलर्स कितना है। देखिए सेम आपको यही फॉर्मेट बनाना है। पहला लिया है हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंस है ना। पहला लिया है हमने ट्रैवलिंग अलाउंस, कितना दिया है 1500 इंटू 12, यहाँ पे दिया है, उसे कितना मिलता है 1500 पर मंथ मिलता है। तो 1500 के हिसाब से 12 महीने का कितना हो गया आपका 18,000 हो गया, ओके। और एग्जाम कितना है आपको, एक्चुअल एग्जाम्पशंस कितना है उसका यहाँ पे दिया हुआ, एक्सपेंडिचर रुपीज 750 आपको एग्जाम मिलता है पर मंथ। तो आपको 750 इंटू 12 अगर करते हैं तो 9,000 होता है, ठीक है। और आपका हुआ कितना है 18,000, तो 18,000 में से 9,000 आपने पे किया और 9,000 आपको एग्जाम्पशन मिला, ठीक है। 9,000 का आपको एग्जाम्पशन मिला, कितना अच्छा है ना। देन हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अगर आपके यहाँ कोई कुक है या ड्राइवर है या हेल्पर है तो उसका भी अलाउंस आपको मिलता है 1200 इंटू 12, अगर आपने किया 1200 पर मंथ मिलता है। तो 1200 इंटू 12 अगर आप करते हैं तो कितना होता है 14,400 होता है, ठीक है। और एक्चुअल एक्सपेंसेस इज एग्जेम्प्टेड कितना है आपको 1,350 पर मंथ एग्जेम्प्टेड है, तो इंटू 12 किया तो 16,200। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल आपको कितना मिलता है, एग्जाम कितना है 1,350 और उसको कितना मिल रहा है 1,200, तो यहाँ पे मतलब 16,200 उसको एग्जाम्पशन है, तो यहाँ पे नील आएगा। आई क्या बात समझ में, हेलो, यहाँ पे समझ में आया कि आपको हेल्पर अलाउंस यस का। मैम, यस मैम। वेरी गुड। नाउ अगर ट्राइबल एरिया में जा रहा है, ट्राइबल एरिया एक्सपेंसेस अलाउंस कितना है 2,400, ओके, पर मंथ इंटू 12 करते हैं आप तो कितना होता है 28,800 आपको मिलता है मंथ ईयरली। और एग्जाम्पशंस कितना है उसमें 2,200 पर मंथ है, तो 200 इंटू 12 आप करते हैं तो 2,400 मीन्स टोटल कितना आता है, मतलब सिर्फ आपको एग्जाम्पशन है 2,400 का और आपका एक्सपेंसेस कितना हुआ है 28,800, तो आपको बाकी का जो है 2,400 अगर हम माइनस करते हैं एग्जाम्पशन तो आपको 26,400 टैक्सेबल रहेगा। गॉट इट। नाउ एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस आपको 300 मिल रहा है पर चाइल्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें हरिहरन को कितने बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो हम 3 बच्चों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, राइट। 300 इंटू 12 इंटू 3 तो कितना होता है 10,800। और आपको सिर्फ एग्जाम्पशंस कितना है यहाँ पे दिया, एग्जेम्प्टेड अप टू 100 पर मंथ, पर चाइल्ड का 100 पर मंथ है। एक सेकेंड, देयर इज एजुकेशन पर चाइल्ड 300, हाँ ओके यहाँ पे दिया नहीं है, बट एज पर जो टैक्स पॉलिसी है, ओके, तो अभी एजुकेशन पे आपको 100 रुपीज पर चिल्ड्रन पर मंथ, तो ये होता है 2 बच्चों का ही हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 2 बच्चों का ही हमें टैक्सेबल है, मतलब एग्जाम्पशन है। तो 10,800 में से 2,400 हम जो भी एग्जाम्पशन अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो 8,400 हमें टैक्सेबल रहेगा। नाउ हॉस्टल एक्सपेंसेस, अगर उनका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो वो भी अलाउंस मिलता है 2,500 पर मंथ, उसको हम कैलकुलेट करते हैं इंटू 12 और इंटू 3 बच्चे के हिसाब से 90,000 होता है, बट हमें तो सिर्फ 2 बच्चे का ही मिलता है, तो 300 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो 7,200 होता है और उसमें से 82,800 हमें क्या करना है पेएबल है, मतलब हमें पे करना है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस उसका कितना है 19,000 है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यस 19,000 पर मंथ।
19,000 इंटू 12 किया तो कितना आता है 2,28,000। अब यहाँ पे क्या दिया है, लेस exempted up to 70% of such allowance or 10,000 per month, whichever is less, is a daily allowance not received. If they receipt of daily allowance, they can claim actual amount spent. So 70% of 2,28,000 means 1,59,600 or 10,000 into 12, it is 1,20,000. So whichever is less. Okay, आप जहां पे भी जाते हैं आपको बिल दिखाना है, अगर आपने बिल दिखाए तो ही आपको एग्जेम्पशंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बिल है आपके पास तो 70% आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको जो नॉर्मल है 10,000 रुपीज के हिसाब से, उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो विचेवर इज लेस, तो 1,20,000 वी टेक। ओके, सो 1,20,000 अगर हम माइनस करते हैं तो आपको 1,08,000 टैक्सेबल रहेगा, मतलब आपको पे करना होगा। नाउ कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या है, 1500 इंटू 12 उसको मिल रहा है, 18,000 होता है। और एग्जाम्पशंस जो है, एग्जम्प्टेड फॉर ऑफिशियल पर्पस इज 50% एग्जम्पशंस है उसमें। कन्वेंस 50% आपको ऑफ मिलता है। अगर हम माइनस करते हैं 9,000 का 1500 9,000 50% 9,000, वो 9,000 आता है जो आपको पे करना है। अब हमें फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट अलाउंस जो है, फुल्ली टैक्सेबल जो डॉग अलाउंस यहाँ पे इन्होंने लिया है, तो 1,000 रुपीज के हिसाब से वो, इसमें आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये आपको फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, 12,000 आपको पूरा भरना है। सो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंस जो है, अगर हम सबका टोटल करते हैं तो वो कितना आता है 2,55,600। कितना आता है 2,55,600 उसको टैक्सेबल है, मतलब ये उसे खुद को पे करना है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है कोई अलाउंस में? सभी हमको इसी तरह से प्रॉब्लम्स करने हैं, एग्जाम में भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। बस ये फॉर्मेट्स और ये सारे जो अलाउंसेस है वो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ कितना कितना देना है। चिल्ड्रन पे 100 पर चिल्ड्रन होगा, अलाउंसेस पे 50%, वो डिपेंड्स वो कहाँ का एम्प्लॉय है ना। Yes, ma'am. यस, नेक्स्ट चलिए तीसरा देखते हैं, ये क्या है प्रॉब्लम देखते हैं। अभी मिस्टर श्री सुगी रिसीव्स द फॉलोइंग अलाउंस ड्यूरिंग 1920। उनको कौन से अलाउंसेस मिले हैं देखते हैं। हाई कॉस्ट लिविंग अलाउंस, ओके, मींस स्टेइंग अलाउंस, अकोमोडेशन अलाउंस, उसको 20,000 है। यहाँ पे मंथ वगैरह कुछ भी दिया नहीं है, ईयर भी दिया नहीं है, सिर्फ हमें बोला है कि 1920 में उसको क्या क्या अलाउंस मिले हैं। देन सिटी कंपनसेशन अलाउंस मिला है उसको, कितना मिला है 7,500। सब्सिडाइड लंच अलाउंस मिला है उसको 2,800। मैरिज अलाउंस मिला है 1,200। हेल्पर अलाउंस मिला है 1,280। मेडिकल अलाउंस मिला है 8,000। उसका एक्सपेंसेस एक्चुअल 9,800 हुआ है, बट उसको एक्चुअल में 8,200 मिला है। ट्रैवलिंग अलाउंस उसका 150 पर मंथ होगा, यहाँ पे 650 मिला है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000 है, बट उसको 12,000 हुआ है, मिला है। ओवर टाइम अलाउंस मिला है 500। एजुकेशन अलाउंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रन का 5,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस पे इसने, हाँ यहाँ पे एंटरटेनमेंट आया है, चलिए देखते हैं। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पे उसने 13,800 स्पेंड किया है। वार्डनशिप अलाउंस है उसका 1,380 एंड बेसिक पे उसका है 2,500 पर मंथ, है ना, मतलब 30,000 पर मंथ उसका बेसिक है, जो हमने सबसे पहले देखा था बेसिक। अभी यहाँ पे दिया है स्टेट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव अलाउंसेस इन द फॉलोइंग केसेस। ए, मिस्टर श्री सुगी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें ध्यान देना है कि एम्प्लॉय कौन सा है। गवर्नमेंट है तभी उसको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, अदरवाइज प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यही हमें क्लियरली रीड करना है एक्चुअल प्रॉब्लम में कि क्या दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड बी में दिया है कि मिस्टर श्री सुगी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय
पोस्टेड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, जब वो आउटसाइड इंडिया जाता है तो उसको क्या मिलेंगे, और वो सिर्फ एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो क्या मिलेगा। देन सी में दिया है कि मिस्टर श्री सुगी इज एम्प्लॉय विथ पब्लिक सेक्टर, तो हमें तीनों का कैलकुलेशन करना है। पहला करना है कि जब मिस्टर सुगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे टैक्स में। देन मिस्टर सुगी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन पोस्टेड आउटसाइड इंडिया हुआ है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। एंड थर्ड में उन्होंने बोला है कि अगर एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर में काम करता है तो उसे क्या बेनिफिट मिलेंगे। ओके, लेट्स सी। अभी पहला देखते हैं कि पहले हम कंप्यूटेशंस करते हैं इसका कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंस मिस्टर श्री सुगी द ईयर 2021। ओके, फुल्ली पहले हम फुल्ली टैक्सेबल जो जो भी जिसको जिसमें उसको टैक्स पे करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है, हमने लिया है हाई कॉस्ट लिविंग अलाउंस जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है। कितना है 20,000, कितना है 20,000। देन सिटी कंपनसेशन अलाउंस वो भी हमने 7,500 लिया है। यस, लंच अलाउंस हमने नहीं लिया है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता है। मैरिज अलाउंस 1,200 लिया है। ओवर टाइम अलाउंस लिया है हमने 500। एजुकेशन अलाउंस ग्रैंड चिल्ड्रन का नहीं मिलता तो वो हमने 5,000 लिया है जिसमें वो खुद को पे करना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 13,800, यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या दिया है, यस 13,800। देन वार्डनशिप अलाउंस लिया है हमने 1,380 एंड मेडिकल अलाउंस दिया है 8,200। ओके, सो ये जो है अलाउंस ये क्या है, उसको फुल्ली टैक्सेबल है, नो एग्जेम्पशंस, उसको पे करना ही है। गॉट इट। नाउ पार्शियली टैक्सेबल मतलब 50% पेड बाय एम्प्लॉयर और कंपनी एंड 50% पेड बाय हिम। सो पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस में ट्रैवलिंग अलाउंस आएगा, ओके 650। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस उसका कितना हुआ है 150 हुआ है ना, प्रॉब्लम में दिया है। देखिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस, सॉरी देखिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया है कितना एक्सपेंडिचर 150 जो उसका हुआ है, और ऑलरेडी कितना है 650 दिया है। ठीक है, तो हमने लिया है 650 और उसका जो एक्सपेंडिचर है जो उसने किया है वो कितना हुआ है 150, वो माइनस किया तो 500 उसको पे करना है क्योंकि मंथली उसको 150 ही मिलता है। हेल्पफुल अलाउंस उसको मिलता है 1,280, बट उसका जो एक्सपेंसेस है वो कितना हुआ है 1200 ही उसको मिलेगा एग्जेम्पशंस, तो 80 उसको पे करना है। एजुकेशन अलाउंस में उसको 12,000 मिलता है बट 100 पर चिल्ड्रन अगर किया 2 चिल्ड्रन का काउंट किया तो 2,400 का उसको एग्जेम्पशन मिला है, अदर जो भी है वो उसको पे करना है। तो टोटल टैक्सेबल अलाउंस जो है वो उसका कितना आता है 70,650 ओवरऑल, हमने जो पूरा टोटल किया उसका। ठीक है, नाउ अभी हम ए बी सी वाइज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पे टैक्सेबल और पार्शियली फुल्ली टैक्सेबल और पार्शियली टैक्सेबल हमने अलाउंस कैलकुलेट कर लिए। अभी हम जो उनकी कंडीशंस है जो हमें प्रॉब्लम में दी है, एक ही कंडीशंस दी है जब अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। ठीक है, लेट्स सी नाउ। Okay, if you feel like that I am going very fast, then please stop me, okay, if you don't understood. So first ए का हम कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंस मिस्टर श्री सुगी द असेसमेंट ईयर 2021। उसका बेसिक सैलरी कितना है, प्रॉब्लम में दिया है कि 30,000 पर मंथ है ना। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया है कि बेसिक पे 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ पीएम के हिसाब से 12 मंथ का जो भी होता होगा 30,000। ठीक है, तो यस, सो बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे लिया 30,000। टैक्सेबल अलाउंस जो हमने अभी निकाले कितना था 70,560 है ना, हमने अभी कैलकुलेट किए राइट। नाउ सो ग्रॉस सैलरी उसका कितना हो गया 1,00,000
560. ओके, नाउ अभी हम देखेंगे डिडक्शंस, जो अंडर सेक्शन 16 में क्या क्या डिडक्शंस आते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1) में हम सबसे पहले देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है हमको 50,000 तक मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया है एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है। इसमें हमने वर्किंग नोट दिया है, हमें देखना पड़ेगा वर्किंग नोट इसका, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में हमने क्या लिया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस में 13,800, बट एक्चुअल जो है हमें कब तक कितना एग्जाम्प्ट है, 5,000 तक एग्जाम्प्ट है ना। 5,000 तक हमें कितना है एग्जाम्प्ट, तो जितना एग्जाम्पशंस है वो हम लिख लेंगे, कितना है 5,000। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे दिया नहीं है, जो नील है, ठीक है। तो टोटल कितना आता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 55,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आता है 55,000। नाउ नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सो हमने क्या किया, ग्रॉस सैलरी में से आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस है वो माइनस कर लिया, तो आपका कितना आता है नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, जो उसको पे करना है वो कितना है 45,560। अभी हम यहाँ पे जो यहाँ पे नोट दिया है एंटरटेनमेंट अलाउंस का वर्किंग नोट, ये आप देख लीजिएगा क्या है। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना वो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से उसको 5,000 का एग्जेम्पशन है, तो वो जो हमने लिया। और यहाँ पे दिया है 20% बेसिक ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। तो 30,000 जो बेसिक पे है उसका अगर 20% कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 6,000। सो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड उसे कितना मिलता है 13,800, तो विच एवर इज लेस 5,000। सो any allowance received by government employees working outside India are fully exempted. Okay, जो भी पर्सन आउटसाइड इंडिया में वर्क करता है और उसे कोई भी अलाउंस मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो जो बी का आंसर है, ए का आंसर तो क्या तो इसमें है। हेलो हेलो, Yes, ma'am. ऑडिबल। Yes, ma'am. वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। Okay, so B we have calculated because he stay in outside India and the person
हेलो हेलो मैम। हेलो Hello? Yes, you are audible. Hello. Your voice is not. Hello. हेलो Yes, am I audible now? यस मैम, नाउ ऑडिबल। ओके। तो मैं कह रही थी कि आपको जो अभी लेटेस्ट वाला स्लैब है वो चेक करना है, ठीक है। जो भी लेटेस्ट स्लैब है वो आपको देखना है, और जो भी हमने अभी तक जो अलाउंसेस देखे हैं उस पे आपको वर्क करके कल मुझे बताना है कि अभी जो मैं 21-22 की बात कर रही हूँ, हम तो सिलेबस 19-20 का पढ़ रहे हैं, गॉट इट। सो 21-22 का क्या है एक्चुअल स्लैब, कितना सैलरी टैक्सेबल है, कितने अलाउंसेस टैक्सेबल है, वो आप देखिए और मुझे कल बताइए, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। बना के रखिए फॉर्मेट, एक फॉर्मेट बनाइए कॉपी में, ठीक है, और वो मुझे दिखाइए कल। किसी को कोई दिक्कत है? मैं ये पीपीटी शेयर करूंगी आज आपको, सर से बात करती हूँ ताकि इस पीपीटी, ताकि आपको भी प्रैक्टिस आप घर पे कर सके, राइट। तो यस मैम। ये सारे मतलब 4 तक हमने प्रॉब्लम देखे, इसके आगे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें करने हैं। आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मतलब खुद को ये करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ये सारे स्लैब्स है जो हमें देखने हैं, ठीक है। लेकिन आप आज दिन भर में जब भी आपको टाइम मिलता है आप करंट स्लैब देखोगे 21-22 का। आई एम रिपीट अगेन, ओके। 21-22 का करंट वाला स्लैब देखना है, बिकॉज आप जब वर्किंग करोगे, कंपनी में जाओगे, तो आपको प्रीवियस ईयर पे वर्क नहीं करना है, बिकॉज एवरी ईयर टैक्स स्लैब्स आर चेंज, ओके। सो जब भी आप कहीं जाओगे, इवन अभी भी आप अगर आप में से कोई रिटर्न फाइल करता होगा तो अभी का स्लैब वो कैलकुलेट करेगा, है ना, अभी के हिसाब से वो चलेगा। तो आपको वो बिल्कुल कॉपी में एकदम एक्यूरेट फॉर्मेट में वो लिखना है, दिखाना है मुझे बना के, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस स्पेशली जो हमने लिए हैं एटलीस्ट वो तो भी लीजिएगा, ठीक है। सो सी यू टुमारो and take care. Bye bye. Have a बाय good day. मैम, थैंक यू। Yeah.